Rocky Star, and I'm very happy to be wearing it. I've been waiting to wear this gown for a while, so it's very nice. And what would you like to say about the award night when you come to award? How do you prepare yourself? Does he suggest you for the dresses? Does you suggest him for the dresses? No, we live in two different departments when it comes to dressing. Of course, I love when he says, "Wow, I really like this dress," but when he dresses and I dresses, we're on two different planets. But today you guys are matching. Yes, Yes. we're matching. Was it pre-planned? मैं हमेशा I always want to match my husband. Sometimes Daniel doesn't match or I'm not matching him, so it's nice today we're matching. Recently, you went to foreign for the Cannes. Tell us something. You represent India, the movie. Tell us all the experience about it. Oh, being at Cannes Film Festival was absolutely amazing. Having a film there, walking the red carpet. I think that we always, जब हम movies देखते हैं, ऐसे एक सेकंड में हम जज करते हैं कि ये मूवी अच्छा नहीं है, ये इसमें ये है, वो है that we don't like and all these things. And I think when you go to a film festival like Cannes, it's a celebration of films. And वो चीज़ I believe that हम वापस or we need to bring to India because films are not easy to make. शुरू from pre-production to the very, very end, post-production, both minute that to make a film. And I think that if we can celebrate filmmaking, we'll get back to where we were before, lockdown. And you always give us special movie. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. We do a picture together. Individual because I worked hard to match her. yes. Ma'am, you're. Ma'am, come here. We'll do the picture. It was on. यहाँ पे विजुअल्स कर लेते हैं। कौन से राइट, इधर कि इधर? अच्छा, आपके राइट मतलब। इसे मैं पहचान में नहीं आ रहा है और छोटे मत करना, नहीं मेरा बड़ा भाई लगे। आज की शाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? Good, yeah. Awards night always fun. Get to feel good about what we've done. I think Hunter का कुछ मिल रहा है, देखते हैं. What are you expecting? One more post on social media with the trophy? I think वही ट्रेंड बन गया है ना आजकल, और करना भी चाहिए. अपने प्रोड्यूसर्स को थैंक करना चाहिए, जो अवार्ड देते हैं ऑर्गेनाइजर को थैंक करना चाहिए. या पोस्ट तो सोशल मीडिया पे होगा ही, बट आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द लास्ट फ्रेटर्निटी. इवेंट का भी आपने पोस्ट किया था, रिस्पॉन्स क्या मिलते हैं लोगों की तरफ से? क्या कुछ रिप्लाई मिलते हैं कमेंट सेक्शन? पता नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, मगर आई थिंक प्यार ही मिलते हैं सबको, तो अच्छा लगता है. एनीथिंग कमिंग अप, एनी प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग? एक वेब OTT का एक वेब सीरीज़ अभी ख़त्म किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. तो ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता उसके बारे में, बट आई थिंक माई ऑडियंस ऑलरेडी नोज व्हाट इट Tell इज. us something about the journey. Thursday, then Hunter, the kind of love that you receive from the OTT platform. How do you see the OTT platform now? आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है
बिकॉज आई थिंक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं यहाँ पे. आई विश ऐसा सिनेमा के लिए भी हो, थिएटर में लोग वापस जाने लगे हैं, तो आई फील गुड फॉर थिएटर What रिलीजेस. role you are playing? Because the last time you played cop character. या Now anything different? so it's a complex role. It's he's a adopted son, and he's helping somebody. उसको पता चलता है कि आगे जाके जिसको मदद कर रहा है, that person is not the right person. You know, तो वहाँ से स्टोरी शुरू होती Are you watching Big Boss OTT? है. नहीं यार, मैं नहीं देख पाया. ये आपके दोस्त थे इस बार? आई थिंक फलक के साथ काम किया था. शी इज़ अ ब्रिलियंट सोल एंड ऑल द बेस्ट टू हर एंड एवरीबडी एल्स. Why an award is important? I don't think any actor can give you a very realistic answer to this because an award is eventually a gratification. It's a pat on the back saying people appreciated our work and liked our performances. And when it is about appreciation and we can't put a finger on it ना, because उसका reason क्या होता है, लोगों को क्यों पसंद आता है कुछ और क्यों नहीं आता है, वो क्या पता. It's an emotion. So I think it's a great emotion because we depict emotions on screen. And the fact that an award is emotional for us and audiences is just such a nice sync. So yeah, very happy that people are happy with it and you get an award. काम आप करते आ रहे हो, जिस तरह का अप्रिशिएशन मिल रहा है, जिस तरह की सराहना प्रशंसा मिल रही है, तारीफ मिल रही है, क्या आप मानते हो जिस स्पीड से आप जा रही हैं माशाल्लाह, people are loving you, you know, every project you're doing, do you feel the sense of responsibility on your shoulder goes up as an individual, as an artist? Of course, I think responsibility when you're in a position to influence so many people, especially when you're at Midday Awards, because they are a film fraternity wise, somebody who writes really what's going on and reports what's really going on, and the fact that they are responsible. We as actors have to be responsible in everything we do and say. मतलब इस इंटरव्यू में भी मैं जो बोल रही हूँ, मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग सुन रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ. So I think responsibility is hand in glove with us, and we should be mindful of that. I have Chori 2 coming up, I have Akeli coming up, I have another film coming up which we still have to announce. So I have 3 releases this year, and they're all female-centric films. So the responsibility that he asked about is now triple, and the stress is triple, but well, it's a good stress. जिस तरह का उन्होंने कहा, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह आपने भी कहा कि जो तीनों लगातार उनसे आ रही, किस तरह का रोल हम देख पाएंगे इस फिल्म में? यार अभी छोरी तो जैसे छोरी 1 थी वैसे ही छोरी 2 होगी. अकेली इज़ अबाउट अ गर्ल ट्राइंग टू फाइंड हर वे बैक होम, क्योंकि वो कहीं अटक गई है. सो इट्स सर्वाइवल एंड करेज. एंड द थर्ड वन तो व्हेन आई कैन टॉक अबाउट इट. बट द फन इज़ कि तीनों अलग रोल्स हैं और तीनों अलग कैरेक्टर्स हैं. इसलिए मज़ा आता है खेलने में क्योंकि आप कुछ अलग कर रहे हो. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. या ऑलराइट, थैंक यू. आपको लेके क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या उम्मीद है आज की शाम को लेके? Oh, Midday is such a prestigious brand itself और सबको entertain करते आए हैं, सबको खबरें देते आए हैं since years and years. It's a big news channel and I'm so happy that every year we are celebrating it like this, like with awards. Midday को जो लगता है who are good enough for the awards they are giving them, and Midday has
also called me up. Letty has called me up from midday for Tu Zakhum Hai, and she loved it. They are giving me an award as well for iconic performance of the year for Tu Zakhum Hai. So feels great to be a part of it, and feels great that Tu Zakhum Hai को इतना सारा प्यार मिल रहा है, that I'm being showered with lot of love by everyone. People are loving it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. शोबिज अवार्ड है। ओके, मिड डे शोबिज़ को सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें यहाँ पे बुलाया गया क्योंकि हमारी फिल्म गुलमोहर के लिए जो है उसको बहुत सारा सम्मान मिल रहा है, और वो उसको लेकर के हम बहुत उत्साहित हैं। मैं और मेरे डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए, हम गुलमोहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये शाम जो है गुलमोहर की शाम होगी। क्या कुछ कहना चाहोगे गुलमोहर को लेके? अभी ये यात्रा गुलमोहर की शुरू हुई है, और गुलमोहर जिस तरह की फिल्म में जितना प्यार इस देश ने और दुनिया ने दिया है, और जिस तरह से उसको सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और बाकी आगे की शाम जैसे भी होगी उसको लेकर के हम काफ़ी उत्सुक हैं। क्या कुछ आने वाला है अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी बंदा तो चल ही रही है, बंदा इज़ डूइंग सो वेल गुलमोहर के बाद, और इसके बाद सूप आएगी नेटफ्लिक्स पे, उसका इंतज़ार है, लेकिन उसके लिए अभी समय है। जिस तरह रिस्पॉन्स जी से मिला है, जी प्लेटफॉर्म से, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक अनोखी स्टोरी थी जो लोगों तक पहुंचानी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। ये पहली बार ऐसी घटना घटी है बंदा के साथ कि OTT के बाद फिल्म थिएटर के पर्दे पे गई, और वहाँ भी उसने सिंगल थिएटर्स में काफ़ी अच्छा किया, और प्लेटफॉर्म्स पे इतनी बड़ी सफलता मिली इसको, और ये सफलता रुक ही नहीं रही है, लगातार लोग उसे देखे जा रहे हैं। कई लोग 10 बार, 15 बार, 20 बार देख रहे हैं। हमने ऐसा नहीं सोचा था। जो भी हो रहा है उसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैमिली मैन 3 कब तक आएगी? फैमिली मैन 3, मैं भी चाहता हूँ कि फैमिली मैन 3 जल्दी शूटिंग हो, लेकिन जल्दी खुशखबरी उसकी शूटिंग की आप सबको दी जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। What am I expecting? I'm expecting entertainment because it's an award function, and I'm really happy that Midday is brave enough to acknowledge the Kerala story. I think that's really cool of them. So 51 days for Kerala. more, yeah. Oh wow. 51 days for Kerala. Tell us the journey about 50 days. I was just asking the makers; they are very happy with the 50 days. I know they've just gone inside, no, and I was 3 minutes late. But no, we're all happy. Yeah, we make a film for the audience, so if the audience loves it, उनको अच्छी लगेगी film, तो और क्या ही चाहिए एक actor को, एक maker को. How the things has been, because over the states, every states are loving the show, the Kerala story. Even I watched. You liked it? Yeah, I loved it. What was your favorite? There was many parts. Which was your? If you had to pick First, one The thing. entry one, the starting one, the mid one. Great. And there was like I saw it. It Great. was very great. Happy your to know. Reaction in your eyes. What? Thank you. That means a lot. Yes. Tell us something about it. I don't know if the film like this you can even like talk about. I don't know how to put in words. I think it's a film best watched. But I feel blessed, yeah, to be part of it. It Apart feels from really that, nice. anything coming up next? Lots of things. I hope you're like me enough because there's lots of me that you're going to see this year and the next year at least. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Very beautiful today, Sari, as always. Tell us something about your outfit. Well, it's a pretty sari
and I'm in an Indian outfit after a very long time, I would say. But of course, मुझे साड़ीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है. शायद इसलिए थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो मैं आपको हमेशा साड़ियों में ही नज़र आऊँगी. बाकी मुझे सुगंधा ने स्टाइल किया है. शाहरुख इज़ माई मेकअप आर्टिस्ट एंड आई फील अच्छी लग रही होंगी शायद, क्योंकि आज पति ने पैक दे के भेजा है कि प्यारी लग रही हो. Tell us about the midday showbiz award. Okay. So I'm here for this award show and बहुत नाम हमेशा ही सुना है मैंने मिड डे अवार्ड शो का. So today I'm going to be a part of it. Yes, साउथ अफ्रीका जाके आए, रोहित सर के साथ तस्वीरें, क्या कुछ हुआ वो सेट पे, किस तरह का एक्सपीरियंस था? It was pretty exciting. I was called as a challenger to South Africa in खतरों के खिलाड़ी. और आपको जब एक चैलेंजर की तरह बुलाया जाता है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालातों से आपको गुजरना पड़ता है स्टंट्स में. एंड मुझे 2 स्टंट्स दिए थे वहाँ करने के लिए. एंड मैं अपनी ज़ुबान से क्या ही बताऊँ कैसे हुए. क्या लग रहा है? आप लोगों को देखना पड़ेगा. कौन है डिफिकल्ट वहाँ पे? शिजान है, शिव है, काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं वहाँ पे. हाँ जी, वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सब लोग ना बड़े ही बैलेंस्ड हैं. इस बार के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल. सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं. उन्हें डर भी लगता है ना, तो भी वो लोग रुक नहीं रहे हैं. तो आई एम रियली हैप्पी विथ ऑल द कंटेस्टेंट्स जिनसे मैं मिलकर आई. और बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे. रोहित सर से काफ़ी समय बाद लास्ट टाइम भी आप गए थे खतरों में, तभी हमने देखा था काफ़ी धमाल हुआ था. जी. इस बार किस तरह का बॉन्ड था आपका रोहित सर? बहुत ही अच्छा. रोहित सर तो हमेशा ही बहुत वेलकमिंग होते हैं, और वो मेरी शक्ल देख के ही मेरे को ज़्यादा टफ वाला कुछ स्टंट दे देते हैं. बट आप हमेशा अच्छे ही करते. टफ स्टंट भी पिछली बार आपने अच्छा ही वाज किया. गुड. तो इस बार बस इस बात का मलाल है कि कार वाला स्टंट नहीं दिया. आई होप कार वाला और नेक्स्ट टाइम. बिग बॉस OTT देख पा रहे हो? कुछ फॉलो किया है आपने? नो एक्चुअली नॉट. मैं बिग बॉस नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है आकांक्षा पुरी इस शो में, और मेरी बेस्ट विशेस उसके साथ है क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त है. Yes. आपका और विवेक सर का कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट, एनीथिंग, एनी सॉन्ग? Okay, maybe this is an announcement. It's an announcement because बहुत ही जल्दी इसी महीने में मिड मंथ, हाय, इसी महीने में मेरा एक शो रिलीज़ होने वाला है. इट्स अ वेब सीरीज़ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि वो शो आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा. आई एम वेरी श्योर. आप लोग ना घर में अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो वो वेब सीरीज़. एंड इट विल बी ऑन जियो स्टूडियोज़. अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊँगी. टीज़र बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं. नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में पक्का. चलो, थैंक यू. हमारी फिल्म को भी प्यार मिला, अवार्ड भी मिला, और मुझे भी अवार्ड मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है यहाँ पे. द कास्ट एंड द टीम फुल, ऑल ऑफ अस आर हियर, सो इट फील्स वेरी नाइस. 51 days for Kerala Story. जी. Tell us something, the kind of love that you guys are receiving. I saw the movie personally. आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी. मैं हैदराबाद में ये मूवी देखी थी. वहाँ के लोगों को भी काफ़ी पसंद आई है. जी जी Tell us something about it. जी, वही मतलब जो एक इंटेंशन था वो बहुत ज़्यादा प्योर था, बहुत जेन्यून था. आई थिंक हम सभी ने एक बार बोली है कि इस पिक्चर से एक भी लड़की की अगर जीत हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. और इस वे में जो मटीरियलाइज हुई है, आई थिंक नन ऑफ अस रियली इमेजिन्ड कि ऐसा होगा. बट वी जस्ट वेरी हैप्पी दैट ऑडियंसेस हैव रियली शोड देयर लव एंड हाउ. दादा, आपने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मुझे पिक्चर के बारे में पूछो तो मैं काफ़ी कुछ बोलूँगा. मुझे अभी भी याद है. क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो 51 डेज है जो गुजरे हैं, काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हुई है इसमें. काफ़ी लोग इमोशनल हुए, काफ़ी लोगों ने सीखा है इस मूवी से. अगर कुछ आप बताएं. एक कहावत है, सत्य पराजित नहीं होता है. तो हमें लगता है कि हमने सत्य बोला था तो वो पराजित नहीं हुए. अगर मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं हूँ तो केरला स्टोरी इंडिया में हिंदी फिल्मों में सेकंड हाईएस्ट फुटफॉल मिला है इस चीज़ की. वो है हमारी फिल्म. ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ लोगों ने ऑफिशियली देखा. अनऑफिशियल नंबर, पायरेटेड वर्जन वाले नंबर तो बहुत ज़्यादा है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ. तो मुझे ये लगता है कि जितने भी कंट्रोवर्सी हो, डिबेट हो, एंड ऑफ द डे ट्रूथ प्रिवेल. दैट इज़ द सेटिस्फेक्शन, एंड वो सेटिस्फेक्शन लेके आज यहाँ से जा रहे हैं. सर, आप थोड़ा क्लोज आ जाइए. अगर ये कब तक OTT पे आने वाली है, बड़ा सवाल है. OTT के डेट्स भी थोड़े पुश करते हैं. ये सारे समाचार आ रहे हैं. अगर कुछ आप इस पे कहना चाहोगे, क्या कुछ
अगले वीक आप OTT के बारे में सारी न्यूज़, सारी डिटेल आप सुनेंगे। अक्सर एक चीज़ होती है कि हम कहते कुछ हैं, उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है। वैसे ही दादा के एक स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे हमारी फिल्म को कोई OTT की डील नहीं मिल रही है। तो बस एक हफ्ते का इंतज़ार कर लीजिए और आप सबके सामने OTT की डील होगी। सर आप अगर कुछ कहना बोलिए अभी, बोलिए। थैंक यू। नहीं, अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, अगर होगा तो बता देंगे। थैंक यू। बहुत एक्साइटमेंट है। आई थिंक मिड डे से आप सभी जुड़े हैं एंड आई बिलीव दैट जब भी कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे मिड डे न्यूज़ और वट एवर इट इज़ रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, आई ऑलवेज वॉच इट एंड पहले से एक्साइटमेंट थी कि काफ़ी लोगों को मिला भी जाएगा। यू मीटिंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट इज वेरी स्पेशल, यू मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम। आर यू एक्सपेक्टिंग एनी? देखो अब तो मेरे को पता नहीं। थैंक यू फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच। आना जी मिड डे बेटे तो हमारा फेवरेट न्यूज़पेपर है, बहुत पहले सुनते हैं पढ़ते आए हैं, और आज मैं हूँ कि टाउन में तो मैंने बोला कि इनके फंक्शन में आज अटेंड करके जाता हूँ। ये आज की शाम को लेके कुछ अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? देखेंगे, मालूम है क्या तो हाँ, मुझे बहुत टाइम से कर रहा हूँ मैं काम, 45 ईयर्स हो गए मुझे, तो इट्स बीन अ नाइस जर्नी, गॉड इज बीन काइंड बाय 45 Any song like would you like to sing? चका तो क्या कहूँ? हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम न जानो ना हम, पम पररररम। कभी कभी जो ये यादें लगती है, आधी लिख दे तू आधी रह जाने दे, हम समंदर का एक कतरा है या समंदर में हम पररररम। Be here because Midday has been very supportive from my first film, so it's just here to celebrate what they've been doing all these years. So I'm just very happy to be here. I'm not too sure, man. I hope I do. Let's wait and watch. I have 2 films coming up. One with R. Balki sir called Bhumar, which has AB, and another film called Agni, which Rahul Dholakia has directed. Thank you. Oh my God, you all will take my case for this for the rest of my life. Sorry. You have walked into it. थैंक यू। मुझे तो अवार्ड अच्छे लगते हैं। बचपन से सिखाया गया कि कुछ अच्छा करोगे तो कुछ मिलेगा। एंड मिड डे बॉम्बे की खासकर मुंबई की खासकर एक पहचान है, एक लैंडमार्क है, और इनके शोबिस का अवार्ड फंक्शन महत्व रखता है, क्योंकि जब मैं शुरू में मुंबई आया था तो मिड डे अखबार पढ़ता था, उससे जुड़ा था, इनके ऑफिस भी मैं जाता था। So it's an important event and I'm happy to get recognized by them and it's a great feeling. अखबारों की आपने चर्चा की, जिस तरह अखबार सब डिजिटल मीडिया मूवीज से OTT, ये जो दौर है काफ़ी अनोखा दौर है, इस दौर के बारे में आपका कुछ कहना है? मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ अखबारों का बहुत महत्व होता था। जब फिल्मों में भी जर्नलिस्ट जो थे बड़े, उनको अगर किसी ईमानदार इंसान को दिखाना होता था तो एक खाकी का अपना खादी का कुर्ता पहनकर, एक झोला लटका के, चश्मा पहन के, थोड़ी दाढ़ी आपकी तरह उगा के होता था। और धीरे धीरे वक्त के साथ बहुत कुछ बदला, इतने सारे माइक नहीं होते, बट
मेरे फादर हर अखबार ख़रीदते थे ये देखने के लिए कि मेरा उसमें ज़िक्र आया कि नहीं शिमला में। एंड वक्त के साथ सब कुछ चेंज हुआ है। आई एम हैप्पी दैट मैं दोनों एरा को रिप्रेजेंट करता हूँ, न्यूज़पेपर, सिनेमा, टेलीविज़न एंड OTT। कश्मीर फाइल्स मेरी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है और उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है। और मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे जज्बात से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान की बहुत ही कामयाब फिल्म है, कमर्शियली, critically very well acclaimed film, and Midday giving me Best Actor award for Kashmir Files. I want to thank them, but I'll officially want to thank them. जब मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पहले इंडियन थिएटर से मैंने कोर्स किया था 1 साल का, तो मुझे मोहन राकेश गोल्ड मेडल मिला था और मेरे फादर मेरे सबसे बड़े फ़ैन थे। तो वो काफ़ी देर तक उस मेडल को देखते रहे। फिर उन्होंने पूछा कि ये गोल्ड का असली में है? मैंने कहा नहीं, इसका ये गोल्ड मेडल है। उसके बाद मेरा फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड जब सारांश के लिए मिला था मुझे, दैट वाज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू मी। My Padma Shri, my Padma Bhushan, they are honors, they can't be compared with any film award. वो आपको आपके contribution के लिए मिलते हैं और सरकार देती है the 3rd highest civilian award, and I'm very happy to have received these awards. I think somewhere deep down every artist craves validation, and I think when you get an award, I think it feels like an acceptance and a validation and an applause from the audience and from everybody around you. So it always feels good when your work and your hard work is appreciated and recognized. So I'd like to thank Midday for doing these special awards, for awarding us for our hard work, for our contribution. Thank you. My first? I think the first ever award I received was the IFA award in Mohabbatein for the best debut, and that felt fantastic. Thank you. Thank you. So it's my first time here for the Midday Showbiz, and I'm feeling very excited and I'm happy to be here. Yes. Tell us something about your outfit. So this outfit is by my mom, Anjum Qureshi. So she has made this gown and I'm feeling very pretty in this. When mom designed the gown, क्या कुछ feeling रहती है कभी भी? Actually, she always makes pretty clothes and everything. So I think it's just one of a collection and I'm just happy to wear it. Anything coming up, any project? I am currently signing up for things. So as soon as the announcement comes out, everyone will know. Thank you so much. Thank you. नो ऑफ कोर्स फॉर द एक्टर उससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने काम किया वो ऑडियंस को अच्छा लगा या नहीं। एंड सो वो अवार्ड उसका एक सर्टिफिकेट बन जाता है जो हम अपने घर पर रख लेते हैं, और जब भी थोड़े स्ट्रेस्ड होते हैं तो खुद को याद दिलाते हैं कि कुछ अच्छा काम किया था और ऑडियंस को अच्छा लगा था। सो एक्टर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है अवार्ड मिलना। हमें वो याद दिलाता रहता है कि हम एक्चुअली ये सारी मेहनत क्यों करते हैं। इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर अस। And what would you like to say about Rana Naidu, Hyderabad से आया हुआ लड़का Bombay, and tell us something about the journey. No, it's Rana Naidu has been like a beautiful roller coaster. We signed it so many months ago, और एक बहुत ही क्रेजी सा चैलेंजिंग सा रोल था, और बहुत सारे उसमें ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिनकी उम्मीद मुझसे नहीं की जाती। एंड
मुझे वही रीज़न लगा कि मुझे करना चाहिए कि अगर इसकी उम्मीद मुझसे नहीं की जाती तो चलो लोगों को थोड़ा सरप्राइज़ करते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू. आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ऑनर्ड कि ये मेरा दूसरा अवार्ड है फॉर प्रिंस एंड राणा नायडू, एंड आई एम हियर नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट ऑल्सो फॉर नेटफ्लिक्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द शो. Can we expect Rana Naidu? Yes, Rana Naidoo 2 is already in the making, so आप लोगों को देखिएगा. Thank you so Thank you. maybe in hindsight मैं पीछे मुड़कर कहूँगा कि शायद एक टर्निंग पॉइंट था कि एक एक्टर था, बहुत वक्त से था, उसे लोग टीवी का स्टार बुलाते थे और शायद उसके बाद उसकी कहानी बदल गई. पर बस अब 1 महीने में गदर 2 आ जाएगी तो इस कहानी को एक नया मोड़ फिर से मिल जाएगा. फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू. Of course, it's very, very important because it's validation, right? You know, it's like बच्चे होते हैं ना कि अगर आप ये अच्छा काम करोगे आपको एक चॉकलेट मिलेगा. So it is like that, right? For all of us, we work very hard, and the only way to gratify that is an award, right? Of course, the revenues are important because this is also a source of income. But primarily, the most important thing for any actor, filmmaker, or anyone related with the media field is an award. Pipeline में अभी नहीं बताऊंगा because I think we should wait and every film should get its due, but God has been kind and आप लोग सब लोग का support चाहिए, and hopefully we should be doing some really good work and we'll put out some great announcements in the next 2 weeks. हाँ जी. So we've just announced the release date. उसका same है, उसका teaser आएगा, trailer आएगा, and we are very, very excited. It's a true story, and ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे ऐसा लगता है कि of course हमने बनाई है और मैं चाहता हूँ कि सब देखें. I think Akshay sir is outstanding in the film, but मुझे ऐसा लगता है ये एक वैसी कहानी है जो बोली जानी चाहिए, because ये एक ऑफिसर थे जिन्होंने इतने सारे लोगों को जाके नीचे से निकाला था 1989 में. So I feel it's a story which needs to be told, and we are very happy that we are the gateway कि हमारे थ्रू ये लोगों तक पहुँचेगी. So उम्मीद है लोगों को पसंद आए. Thank you, thank you, thank you. See you. Bye. Thank you. थैंक यू सो मच यार. Tell us something about it. यही मौका होता है जब अवार्ड्स होते हैं तो कुछ अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं. अदरवाइज शो में तो हमेशा मुझे ज़्यादातर नाइट सूट में रखा जाता है. क्या कुछ उम्मीदें आज की शाम को लेके अवार्ड मिलने वाला है और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे मिड डे शोबिज़ में अवार्ड देने के लिए बुलाया है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग दैट अवार्ड. और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो भी अवार्ड होता है, जब भी किसी एक्टर को अवार्ड मिलता है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, क्योंकि हम लोग जो एंटरटेनमेंट करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका रिकग्निशन हमको तब मिलता है जब हमको कोई अवार्ड दिया जाता है. एक सवाल सभी लोग आपको पूछते हैं, अनुपमा चले अमेरिका, क्या है हर जगह आपको ये सवाल? अभी तो ये बहुत नज़दीक आ गया मामला. लोगों को पता चल जाएगा कि अमेरिका जाने वाली है अनुपमा या नहीं जाने वाली है. वनराज की कोशिश है कि वो चली जाए, बट क्या हालात उसे जाने देंगे अमेरिका? और ये जानना है तो जानने के लिए देखते रहिए अनुपमा रोज़ रात 10 बजे. थैंक यू सो मच.
मिड डे और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि और इस कार्यक्रम का हिस्सा होने का मुझे भी सौभाग्य मिला। और जब बोलते हैं ना प्रॉपर निमंत्रण के साथ आप कहीं जाते हो तो उसका हिस्सा बनने का अपना सौभाग्य अलग होता है। तो मिड डे शोबिज़ ने मुझे जिस प्यार से सम्मान से बुलाया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और पूरी टीम को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि आगे खूब बढ़िए। डिजिटल वर्ल्ड है पूरी दुनिया में, वैसे भी आप छा रहे थे, इतने सालों सेवा कर रहे थे जी। मैं कल से लगातार ट्रैवलिंग हूँ। सत्यप्रेम कथा को पूरे सबसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि खूब देखिए, एंजॉय करिए। एक अलग तरीके की फिल्म है और मैं भी एक छोटा सा उसका हिस्सा हूँ, तो बस यही। हाँ अभी 2-3 वो शहजादा उसमें नहीं। मैं ये कहूँगा कि थैंक यू सो मच कि जिसके साथ में काम करने का मौका मिला वो ऐसा लगता है कि हम लोग फिल्में हमने कार्तिक ने भी 3 की हैं और बहुत छोटा भूल भुलैया छोड़ दें तो वो दोनों तो गेस्ट अपीयरेंस ही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से हम एक दूसरे के साथ, वैसे ही हमारा जो हमारे थोड़े सीनियर एक्टर हैं उनके साथ भी यही था। तो मैं तो हमेशा नया दिन, नया बच्चा, नया जन्म, नए लोग। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं दोनों का हिस्सा हूँ, लेकिन ये कैसे कब रिलीज़ होगी ये कंप्लीट डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कॉल है और क्या उनकी प्लानिंग है। लेकिन एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर के रूप में मुझे भी मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।